Good morning, students. We continue our discussion on to the first chapter of GC, that is overview and issues. Okay, so I think we have already started about it. We have seen introduction. Okay, so today the next thing that we are going to focus will be on e-waste recycling, green computing, and green IT pathways, and we would be seeing problems. Okay, these are the major 3 points of discussion, and then we will see a very brief about what exactly carbon footprint is, and then we'll discuss about it. Okay, so let's just have a quick revision of what we did. So we started with introduction and we discussed that when we are talking about these things, okay, so mostly, okay, talk about words that they are facts, okay, we cannot deny them, they exist, but somewhere or the other, we can, say that they are creating, uh, we can say, they are issues also, because uh, in a way that they are impacting the environment. Okay, in a way that they are impacting the environment. And now what we have to understand is that what will be the solutions for them, so that we can say impact will be reduced. Okay, so we have to take care about this thing. Okay, now all the things which we have listed down over here, students, will fall into this category. Okay, so there are so many devices and there is so much of high power supply which is required to run those devices, so it is a fact, it is somewhere or the other impacting the environment, and we need some solution so that the impact can be reduced. Disposal of old electronic devices. There are so many old electronic devices commercially, even in household. So it is a fact. It is an issue also because it is impacting the environment. Need to find out the solution for it. Energy consumption. The energy consumption, as we already taken an example of data center. So it is a fact. It is impacting the environment, and we need to find out a solution for it. Harmful chemicals and metals. Now, harmful chemicals and metals, we will talk in two ways. Definitely, harmful chemicals and metals very first will come into the picture when the electronic device is created itself. Okay, जैसे ही वो create भी हो रहा है, मतलब जब वो प्रोडक्शन स्टेज में भी है, तभी भी हार्मफुल केमिकल्स और मेटल की बात आएगी। तो ये हो गया कि जब वो प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, ओके, और जब वो डिस्पोज होने वाला है, ओके, तभी भी हम हार्मफुल केमिकल्स और मेटल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दिस, बट दिस इज अगेन अ फैक्ट। ओके, क्योंकि जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्रिएट करते हैं, there are so many substances. Okay, we will talk about which substances we actually are telling today itself, कि कौन से मेटल्स या केमिकल्स यूज हो रहे हैं जब वो प्रोड्यूस भी हो रहा है, एंड वंस इट गेट्स इट इज नॉट इन यूज, सो हाउ इट एक्चुअली इम्पेक्ट्स द एनवायरनमेंट एंड सो ऑन। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो इन टर्न, ओके, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, वी कैन से, we are talking about basically uh, all the environmental issues related to electronic devices. Okay, so this is what is in existence right now. Okay, this is what is a problem right now, this is what is an issue right now, this is there, this is in existence. So now our discussion should go upon understanding these issues, okay, and understanding how green computing is going to play a role over here. Okay, तो हमें जानना ये है कि ये issues actually क्या है, कहाँ पे act करते हैं, okay, कितना environment को they are damaging,
एंड देन ऐसा तो क्या कर सकते हैं, या ग्रीन कंप्यूटिंग हमें क्या बताता है उसके बारे में। ओके, सो आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस द वेरी फर्स्ट एंड अ सिंपल सॉल्यूशन जो हमें ग्रीन कंप्यूटिंग बताता है। ओके, जिसको हम बोलते हैं 3R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो रिड्यूस मतलब हम नंबर ऑफ परचेजेस कम कर देंगे, अगर ज़रूरत नहीं है तो कुछ नया चीज़ नहीं परचेज करेंगे। रीयूज़ मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर हो सकता है तो उसको बिफोर रेदर देन जस्ट चेंजिंग इट, इवन इफ इट इज़ वर्किंग, हम ट्राई करेंगे कि उसको अपग्रेड करें, या एटलीस्ट अगर हम यूज़ नहीं करने वाले हैं तो कहीं और दे दे जहाँ पे वो यूज़ हो सके, ताकि नया परचेज जो है। सो जब हम रीयूज की भी बात कर रहे हो, वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली लिमिट द नंबर ऑफ परचेज। नाउ लिमिट द नंबर ऑफ परचेज मतलब नया परचेज नहीं होगा तो क्या होगा, दिस इज वेरी सिंपल राइट स्टूडेंट्स। अगर नया परचेज नहीं होगा तो वी कैन से कि ऑलरेडी जितना जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अभी है ना कहीं जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो शायद वो सस्टेनेबल इम्पैक्ट होगा राइट, कुछ ना कुछ मतलब वही रेंज में इम्पैक्ट होते रहेगा। लेकिन अगर नए 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 डिवाइसेस बढ़ते ही गए तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इम्पैक्ट जो है वो बढ़ते जाएगा। अगेन आई टोल्ड यू इट इज़ एज सिंपल एज मतलब जैसे कि हम ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करते हैं कि वी नो दैट देर आर 10 कार्स। ओके, तो 10 कार्स है वो इम्पैक्ट करने ही वाली है, लेकिन अगर कल 10 के 20 हो गए तो फिर इम्पैक्ट ज़्यादा होने वाला है। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। Next is recycle. I think recycle is something which is very familiar. Okay, it is not just कि recycling कुछ नया है या e-waste के लिए है। Recycle happens for water, recycle happens for plastic, recycle for happens for many waste substances. बेसिकली जब हम रिसाइकल की बात कर रहे हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है उसको ऐसे ही नहीं जाने देते हैं। ओके, उसको ऐसे ही वी से कि उसको हम ऐसे ही डिस्पोज या डिकम्पोज नहीं होने देते हैं, रैदर देन उसको कहीं ना कहीं हम उसको यूज़ करते हैं, ताकि नया मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाए। ओके, ना नया मैन्युफैक्चरिंग कम होगा तो अगेन एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट जो है वो शायद कम हो जाएगा। प्लस जो ऑलरेडी चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं हो रही है, जो अगर मतलब कहीं पे रहेगी तो वो अगेन एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ही करने वाली है, इसकी जगह पे वो कहीं ना कहीं पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं राइट। ओके, सो आई थिंक अगर हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात करें, ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी फेमस। देर आर मैनी organizations, okay, who collect the plastics, okay, and they make some they actually create some useful substances from it. Okay, there are roads which are made from plastics. Okay, at times there are some walls which are made from plastics and so on. So this is about we can say 3R. सो ये जो 3R है दैट इज़ अ वेरी फर्स्ट मोटिव जिसके ऊपर जो ग्रीन कंप्यूटिंग है वो काम करता है। हाँ, लेकिन जब हम इधर रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्रीन कंप्यूटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर राइट। अभी ये रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एक्चुअली ऐसी चीज़ है जो आप कहीं पे भी उसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं राइट स्टूडेंट्स, तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेके ये कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। तो हम जैसे ही रिड्यूस करना है या रीयूज करना है या रिसाइकल करना है, ओके, कुछ भी करना है, वी विल डू इट एवरीथिंग ओके विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, ओके, तो आगे जाते हैं। तो ये था हमारा बेसिक थिंग अबाउट ग्रीन। नाउ लेट अस सी इन वेरी ब्रीफ के ये जो हमें प्रोसेस दिख रहा है, ओके, एक जो आपको डायग्राम दिख रहा है ओके स्क्रीन के ऊपर, ये जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली डायग्राम है, इट इज देयर फॉर वी कैन से रिसाइकलिंग ऑफ कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, सो बेसिकली इधर दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखाए हैं। ओके, एक है ये यू कैन सी इट इज अ कंप्यूटर एंड देन यू कैन सी इट इज अ काइंड ऑफ अ सेल फोन। ओके, बट देयर कुड बी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नाउ रीज़न ये है इन दोनों को दिखाने का क्योंकि ये जो है या टेलीविजन है, दे आर मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस ओके विच मोस्टली गोज इनटू रिसाइकलिंग। नाउ तो सबसे पहले ओके जब सो द प्रोसेस द साइकिल गोज लाइक दिस। ओके, जो साइकिल तुम्हारा है वो इस तरीके से जा रहा है। ओके, आई शो यू वन बाय वन। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ होती है वो हम करते हैं, जो हमारा वेरी फर्स्ट प्रोसेस है। ओके, वेरी फर्स्ट प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं मैनुअल डीअसेंबलिंग। ओके, या हम उसका दूसरा टर्मिनोलॉजी है मैनुअल डिसमेंटलिंग। नाउ मैनुअल डिसमेंटलिंग में क्या होता है, तो देर आर सेट ऑफ पीपल
देयर आर सेट ऑफ ट्रेन्ड पीपल, ओके। ऐसे लोग होते हैं, ट्रेंड होते हैं, जिनको पता है कि सी इट इज़ वेरी सिंपल। रिसाइकलिंग का मतलब ये थोड़ी है कि कोई मशीन होगा, श्रेडर मशीन होगा। आई होप यू नो श्रेडर मशीन। श्रेडर मतलब जहाँ पे तुम कुछ डालो, यू नो, इट गेट्स जस्ट क्रश्ड आउट, ओके। छोटे पार्टिकल्स होते थे। तो अगर तुम पूरा का पूरा लैपटॉप या पूरा का पूरा बोल सकते हैं ना डेस्कटॉप या कुछ भी ऐसा पूरा श्रेडर मशीन में डाल दोगे तो फिर हो गया ना, वो कुछ नहीं होने वाला है, वो पार्टिकल्स में ही सीधा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ होती है या बहुत सारे बड़े बड़े भी पार्ट्स होते हैं जिसको तुम एक्चुअली यू नो सही वर्किंग कंडीशन में होते हैं, जिसको तुम रीयूज कर सकते हो, या कहीं ना कहीं पे यू नो वी कैन से कि अगर उनको थोड़ा बहुत रिपेयर किया जाए तो आइधर वो कंप्यूटर्स या मोबाइल्स बनाने के लिए यूज़ हो सकते हैं या कुछ और चीज़ बनाने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो पहले जो होता है वो होता है मैनुअल डीअसेंबलिंग। नाउ जब हम मैनुअल डीअसेंबल करते हैं या जब हम मैनुअल डिसमेंटलिंग करते हैं तो हमें क्या मिलने का चांस है, ओके। मतलब हमें क्या क्या मिल सकता है, हम क्या क्या रिकवर कर सकते हैं। तो वी कैन रिकवर मेटल, वी कैन रिकवर प्रेशियस मेटल्स, ओके। नाउ प्रेशियस मेटल्स हो गया, यू नो वी नो कि देर इज अ सर्टेन पार्ट, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनेगा देर विल बी अ सर्टेन पार्ट ऑफ गोल्ड, देर विल बी सर्टेन पार्ट ऑफ सिल्वर इनटू इट। तो तुम्हें मेटल्स मिल सकते हैं, प्रेशियस मेटल्स मिल सकते हैं, तुम्हें ग्लास मिलने वाला है, तुम्हें सर्किट बोर्ड्स मिलने वाले हैं, और तुम्हें प्लास्टिक मिलने वाला है। तो देर आर चांस कि जब तुम मैनुअल डिअसेंबल करो तुम्हें ये इसमें से कुछ ना कुछ यू नो रिकवर होगा जो तुम सेट असाइड कर सकते हो उसको। उसके बाद बाकी जो चीज़ें बच जाती है, ओके, जिसका फिलहाल तुम यू नो मैन्युअली कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुमने कितना भी ट्राई किया बट दे आर सो मच इंटैक्ट विथ ईच अदर कि तुम उसको कुछ नहीं कर पा रहे हो, वो फाइनली जाएगा तुम्हारा श्रेडर मशीन में, ओके। नाउ श्रेडर मशीन क्या करेगा, उन सबको क्रश कर देगा क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब ग्रैन्युलेट मतलब उसको पाउडर पार्टिकल्स में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो सब क्रश हो जाएगा, ओके। तो ये तुम देख सकते हो कि क्या हो गया, ये जो पूरा हमारा यू नो मशीन था या डिवाइस था उसमें से पहले हमें ये सब पार्टिकल्स मिले और बाकी का हमने श्रेडर में डाल दिया। अभी श्रेडर में डालने के बाद उसको एक मैग्नेटिक करंट दिया जाता है, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है ना। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब तुम पार्टिकल्स को श्रेड करोगे तब तुम्हें क्या होगा कि मेटल्स के हिसाब से कोई पार्टिकल्स हैवी होंगे, कोई पार्टिकल्स यू नो स्मॉल में होंगे, कोई पार्टिकल्स लाइट वेट होंगे। अभी जस्ट जस्ट तुम समझो जितना पार्ट बाकी रह गया उसमें मेटल होगा, प्लास्टिक होगा, शायद ग्लास भी होगा। बड़े बड़े पार्टिकल्स या जो भी है मतलब एलिमेंट्स है वो तुम्हें मिल जाएंगे बाकी सब। तो ये श्रेडर से क्या होगा, वापस तुम यू नो ग्लास को, मेटल्स को, फिर यू नो प्लास्टिक को और ग्लास को तुम वापस यू नो अलग अलग सेपरेट कर पाओगे ताकि वो जो सब पार्टिकल्स है वो वापस तुम कहीं ना कहीं कोई चीज़ बनाने के लिए यूज़ कर सको। सो अगर ये जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है समझो वो बहुत अच्छे से काम करता है तो यू कैन एक्सपेक्ट, ओके, यू कैन एक्सपेक्ट दैट मोर ऑलमोस्ट 80% ऑफ जो तुम्हारा यू नो डिवाइस है, ओके, उसको कहीं ना कहीं पे तुम वापस कहीं ना कहीं पे यूज करो। डेफिनेटली देर देर इज अ वेरी हाई चांस के 20% या मोर देन दैट, ओके, ऐसी चीज़ें होंगी जिसका तुम कुछ नहीं कर पाओगे और जिसको तुम्हें वापस यू नो डिस्पोज करना है या कहीं ना कहीं उसको उसके बारे में तुम्हें कुछ सोचना है कि अभी उसका क्या करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। सो दिस इज मतलब जिसका तुम यू नो चांस बहुत कम है कि जिसको तुम अच्छे से रीयूज कर पाओगे। तो देन यू नो उसके बारे में देर आर सो मैनी अदर टेक्निक्स के जिससे तुम उसको डिकम्पोज कर सकते हो, कहीं दूसरी जगह पे उसको यूज कर सकते हो एंड सो ऑन। तो दिस इज हाउ वी कैन से अ नॉर्मल रिसाइकलिंग और वी कैन से नॉर्मल ई वेस्ट रिसाइकलिंग मैकेनिज्म वर्क्स, ओके। सो ये जो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स है दिस विल बी एक्चुअली टर्न एज ई वेस्ट। वाई? क्योंकि वो चल नहीं रहे होंगे, देर विल बी सम डैमेज और समथिंग लाइक दैट, ओके। उसका सबसे पहले मैनुअल डिसमेंटलिंग होगा। मैनुअल डिसमेंटलिंग होने के बाद ओके उसमें से बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें मिलेगी। उसके बाद वो श्रेडिंग मशीन में जाएगा, ओके। उसके बाद उसको एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा, ओके। और उसके बाद ये जो पार्टिकल्स है, ओके, डिपेंडिंग ऑन दिस यू नो मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट सेपरेशन दे विल बी सेपरेटेड इनटू बेस मेटल्स एंड plastics and processed glass, okay. So, students, this is about what we can say e-waste recycling.
सो नाउ आई मूव अहेड। नाउ तो अभी तक हमने बात किया इश्यूज़ के बारे में बात किया, और फिर हमने देखा कि ये रिसाइकलिंग जैसा कुछ हम कर सकते हैं। इश्यूज़ के बारे में बात करने के बाद हमने बताया कि हमें 3 आर बेसिकली यूज़ करना चाहिए, जो होता है रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ओके, और उसमें से हमने रिसाइकलिंग प्रोसेस को भी अच्छे से देखा। नाउ लेट अस फोकस ऑन ग्रीन कंप्यूटिंग। एग्जैक्टली क्या है, हमें क्या बताना चाहते हो? ओके, मतलब ग्रीन कंप्यूटिंग एग्जैक्टली क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो एग्जैक्टली हमें क्या चीज़ को टारगेट करना चाहता है। तो हमें थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी अभी तक आइडिया आ गया है, बट लेट्स सी इन मच मोर डेप्थ वे व्हाट इट ट्राइज टू टेल अस। तो बिकॉज ग्रीन कंप्यूटिंग इज नाउ एग्जिस्टिंग एज अ सब्जेक्ट, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि ठीक है वो अभी सिर्फ वो एक छोटा सा एरिया नहीं रहा है। ओके, इट इज़ अ बिग, इट इज़ अ सब्जेक्ट, देयर आर सर्टिफिकेशन विच आर गोइंग ऑन दिस। ओके, there is a post, okay, which we will see at the end. Chief green officer is one of an important post which is very equivalent to at times CEO of an organization. तो ये ग्रीन कंप्यूटिंग जो है, इट इज़ नॉट अ सिंपल नॉर्मल थिंग कि हाँ मतलब जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ा हो गया। पहले डेज बैक जब इसका सीरियसनेस नहीं था लोगों को, जब ई वेस्ट का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्लियर नहीं था लोगों को, ओके, तब भी वोट वॉज जस्ट टोल्ड कि हाँ चलो रिसाइकल करना है, हो गया। बट नाउ इट इज़ अ बिग स्टडी। इट्स नॉट जस्ट सिंपल, इट्स नॉट जस्ट एक्चुअली टारगेटिंग रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग तो एक पार्ट है सिर्फ ग्रीन कंप्यूटिंग का, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी है जो वो टारगेट करता है। तो लेट अस सी स्टूडेंट्स, what is green computing? Let's read the definition about it. It is a scientific study of efficient and effective designing, manufacturing, using, disposing and recycling of computers. तो ये सिर्फ रिसाइकलिंग के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। ये जो ग्रीन कंप्यूटिंग है वो बात करता है डिजाइनिंग से ही, मतलब जब हम बनाते ही है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को, जब हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, जब हम उसको यूज करते हैं, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फेज हो गए, राइट। मतलब हम सीधा डिस्पोज के बारे में और रिसाइकलिंग के बारे में बात करें, लेकिन उसके पहले कौन कौन से स्टेज होंगे? तो वो डिज़ाइन होगा, वो बनेगा और फिर वो यूज़ होने वाला है। तो ये तीन फेज के बारे में भी बात करते हैं। डेफिनेटली आफ्टरवर्ड्स उसको हम डिस्पोज कैसे करेंगे और रिसाइकल कैसे करेंगे। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, बेसिकली कंप्यूटर्स, ओके, या कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स लाइक सर्वर, नेटवर्क सिस्टम, मॉनिटर्स, यूएसबी प्रिंटर्स, द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। ओके, वी कैन नॉट डिस्क्राइब द लिस्ट ओवर हियर। आई थिंक हमने उसी दिन डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में क्या क्या आ सकता है, तो लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स है, ओके, या उसका डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चर, यूज, डिस्पोजल और रिसाइकलिंग किस तरीके से होना चाहिए, कितना एफिशिएंट और इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि सो दैट वो एनवायरनमेंट को, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है वो कम से कम हैम्पर करे। दैट स्टडी, वो जो पूरा स्टडी है, ओके, उसको हम बोलेंगे ग्रीन कंप्यूटिंग। The study uses science to create technologies that help to preserve natural resources and reduce the harmful impact on the environment. तो ये स्टडी का दूसरा ये भी फोकस है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, ओके, नाउ सम एग्जांपल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज हमें ऑलरेडी पता है, ओके, पेट्रोल, डीजल, समथिंग लाइक दैट, दे आर कोल, दे आर सम नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसको हम प्रिजर्व कैसे करें, और दूसरा हम भी ये भी हमें जानना है कि उसका इम्पैक्ट जो है, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे हम कम से कम कैसे बेसिकली कर सकते हैं। सो दिस इज वी कैन से द आइडिया बिहाइंड द ग्रीन कंप्यूटिंग। नाउ व्हाट इज द गोल ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग? ओके, ग्रीन कंप्यूटिंग का गोल क्या है? तो ग्रीन कंप्यूटिंग का गोल है कि देयर शुड बी रिडक्शन इन यूज ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स। ओके, हार्मफुल मटेरियल्स जो है वो कम से कम यूज होने चाहिए। नाउ ये हार्मफुल मटेरियल्स है क्या? ओके, वी विल स्टडी टुडे। ओके, just I try to tell you these harmful materials, okay, they are termed as toxins। उसके उसको हम बोलते हैं toxins। ओके, सो वो चाहता है कि जो टॉक्सिन्स है वो कम से कम यूज़ हो। मैक्सिमाइज एनर्जी एफिशिएंसी। नाउ मैक्सिमाइज एनर्जी एफिशिएंसी मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिनिमम यूज़ होना चाहिए और उसका मैक्सिमम वीकेंड से आउटपुट होना चाहिए, राइट। ओके, सो एनर्जी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करता है, ओके, एंड प्रमोट्स रिसाइक्लेबिलिटी। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही है, ओके, तो इन सब चीज़ों को वी कैन से कि हाँ हम कहीं ना कहीं पे ग्रीन कंप्यूटिंग को टारगेट कर रहे हैं। ओके, वी आर ट्राइंग टू टारगेट ग्रीन कंप्यूटिंग। सो दिस इज
we can say the definition of green computing. Again, I will go with it. It is a scientific study of efficient and effective designing, manufacturing, using, disposing, and recycling of computers and computer related products like server, network systems, USB, monitors, etc. etc. The study also wants that the natural resources should be preserved और environment पे impact जो है वो कम से कम होना चाहिए. मेजर गोल्स क्या है ग्रीन कंप्यूटिंग के? तो वो चाहता है कि हार्मफुल मटेरियल्स कम यूज़ हो, रिसाइकलेबिलिटी हो, जितने भी डिवाइसेस बने वो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस बने. ओके, और जो ग्रीन कंप्यूटिंग है उसको हम ग्रीन आईटी भी बोलते हैं. फाइन. ओके. Now, there are some pathways of green computing. Now, pathways of green computing या green IT. Pathways का मतलब क्या है कि जैसे कि जब भी अगर समझो कि मैं हम बताते हैं कि चलो मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें मुझे ग्रीन कंप्यूटिंग को इम्प्लीमेंट करना है. तो क्या करना है, मतलब मुझे क्या करना चाहिए, कौन कौन से एरियाज जो है जिसको मुझे देखना चाहिए. ओके. नाउ एक्चुअली देर आर 13 पाथवेज, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 13 के 13 हम फॉलो करेंगे वहाँ पे. ये जस्ट एक एक ओवरव्यू है ये पूरा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या जब अगर तुम ग्रीन कंप्यूटिंग की बात करो, अगर तुम्हें उसको फॉलो करना है तो तुम्हें ये सब पाथ वेज जो है या ये जो सब एरियाज है बेसिकली उसको तुम्हें ध्यान में रखना होगा. ओके. So some areas again are very simple to understand in nature. Okay, so let's talk about it. First हो गया power management. Okay, now पावर मैनेजमेंट की जब तुम बात करो इसका मतलब ये होता है कि अननेसेसरीली तुम्हारा जो पावर है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए. ओके. तो दीज डेज ओके देर आर मैनी सिस्टम्स जहाँ पे सेंसर्स होते हैं. ओके, विच डिटेक्ट कि अगर थोड़ा बहुत नेचुरल लाइट अवेलेबल है तो सम ओनली फ्यू लाइट्स विल बी ऑन, देन डिपेंडिंग ऑन इट the amounts of LEDs which are on and off which will increase. Okay, people have started making use of LEDs, people have started making use of bulbs which are having. So power management की जब हम बात करें तो we are talking about कि uh, what we want is that there should not be unnecessary use of power, and whatever power is actually available to us it should be used very wisely. Okay. एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग, अगेन सेम थिंग. एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि जितना हमें लेट्स से जस्ट एक एग्जांपल देखो कि अगर हम लेट्स से नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ाते जाते हैं या नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ाते जाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना होगा, सबको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देना होगा. राइट. ओके. तो अगर हम ये करेंगे तो एवरी टाइम अवर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट विल बी मोर. नाउ रादर देन तो हम क्या कर सकते हैं. ओके, तो इससे अच्छा जब भी हम कोई मशीन को बनाते हैं ओके वी हैव टू मेक इट वेरी एनर्जी एफिशिएंट ताकि वो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक उसमें चलता रहे. इफ आई ट्राई टू गिव यू अगेन एन एग्जांपल ऑफ इट. ओके, इससे कभी कभी क्या होता है व्हेन एवर सम डिवाइसेस आर गेटिंग वेरी ओल्ड. ओके, उनका जो पावर कंजम्पशन है वो हाई हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है. राइट. ओके. और इनिशियली इवन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच वर मेड दे वर यूजिंग ह्यूज एनर्जी कंजम्पशन. तो हमें ये नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि हमारे जितने भी कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स बन रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंट बने. नेक्स्ट इज रेमेडिएशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स. ओके, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स है जो एनवायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, ठीक है, उसका तुम उसको तुम रिमूव कैसे करने वाले हो. Next is server virtualization. This is very important area when we talk about concepts like data centers basically. तो server virtualization हमें क्या बताता है कि try to have a server which is of a bigger capacity and try to make multiple virtual machines on it. So by making use of virtualization, you will actually cut down the physical requirement of we can say another machines. I hope you all have already seen what is the concept of virtualization is somewhere into your operating system, but this is a very important concept and we are going to discuss in detail about it. As of now, I can simply tell you that if we are talking about server virtualization, okay, we want to say something like this. Okay, so virtualization, I will say, is a process where you can have multiple machines. Okay, or we can say multiple uh, virtual machines
created on a single physical machine. Okay, so what is the advantage? Advantage is, I can say, the requirement of machines, new physical machines will be less. Okay, so that is we can say one of the very important advantage of what we can say server virtualization. Sewage treatment is something, okay, which is normally related to environment. Okay, sewages are nothing but we can say, the underground systems where the water and the waste and everything flows. Similarly, वेस्ट मैनेजमेंट, वॉट एवर वेस्ट इज बिंग प्रोड्यूस नाउ, वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है। यहाँ पर सिर्फ हम ई वेस्ट के बारे में बात नहीं करें, जितना भी दूसरा वेस्ट होता है, ओके, जनरेट प्लास्टिक का वेस्ट हो गया, पेपर का जो भी वेस्ट हो गया, जो उसको तो हम मैनेज कैसे कर रहे हैं। ओके, रिसाइकलिंग, अगेन रिसाइकलिंग डेफिनेटली इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आईटी। रिसाइकलिंग में भी इधर हर एक चीज़ का रिसाइकलिंग आ जाएगा। ओके, जितना भी बेसिकली हमारा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका सभी का हम रिसाइकलिंग कैसे करने वाले हैं। So again, we'll go through the pathways: power management, energy efficient computing, remediation of environmental pollutants, server virtualization, sewage treatment, waste management, recycling. Okay. Regulatory compliance. Again, this is something, okay, which is very 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 important. Now, what is regulatory compliance? Regulatory compliance का मतलब ये हो जाता है स्टूडेंट्स कि देयर हैज़ टू बी सम रेगुलेशंस, ओके, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए। एंड इफ़ वी ब्रेक दोस रेगुलेशंस, ओके, देन देयर हैज़ टू बी सम वी कैन से कंप्लेंट्स अबाउट इट। मतलब कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि इट इज़ समथिंग लाइक वी कैन से अ लॉ बेस्ड काइंड ऑफ सिस्टम। तो जहाँ पे भी हम ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर लेट्स से ग्रीन कंप्यूटिंग बता रहा है कि, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि हाँ हम ग्रीन कंप्यूटिंग को फॉलो करें, तो देर विल बी सम रेगुलरली कंप्लाइंस जो भी वो लोग फॉलो कर रहे होंगे। मतलब वो लोग बता रहे होंगे कि हाँ हम ये चीज़ों को यूज़ करेंगे, इस रूल्स को हम फॉलो करेंगे, इस रेगुलेशंस को हम फॉलो करेंगे। और अगर ये रेगुलेशंस ब्रेक होते हैं तो देर विल बी समथिंग, ओके, विच वी हैव टू पे, और कुछ भी हमें वी विल बी इन डेंजर और समथिंग लाइक दिस। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं डायरेक्टली कभी भी ऐसा नहीं बोला जाता। देर आर वेरी 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 लेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग जिसको हम ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि वो लोग रेगुलेटरी कंप्लायंस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ओके, बट देर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन हु डू नॉट फॉलो द रेगुलेटरी कंप्लायंस। ओके, मतलब समझो कि रेगुलेटरी कंप्लायंस में क्या होगा, ओके, अगर हमें बोला गया है कि हम ये हार्मफुल केमिकल्स नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ करता है, हाँ, कहीं पे रिसाइकलिंग जो है वो नहीं होता है, इलीगल डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट हो जाता है, तो ये सब आ जाता है रेगुलेटरी कंप्लायंस में। Next is water purification. I think this is something very simple. We all are aware about it. Okay. Next is green metrics and green methodology. Okay. So green metrics and methodology itself is a very big thing. ये बताता है कि जितने भी प्रोसेसेस तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं, चलो एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की या इंडस्ट्री की बात करते हैं। मेरे पास एक इंडस्ट्री है, ओके, जिसका काम जो है इट इज़ लेट्स से द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स। ओके, तो ग्रीन मैट्रिक्स एंड मेथोडोलॉजी क्या बोलता है कि हर एक चीज़ हो गई, पैकेजिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्या हर एक जगह पे तुम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हो। ओके, सो इट इज़ नॉट कि जस्ट तुमने एक एरिया में एनवायरनमेंट को ध्यान रखा। ओके, अगर क्या तुम हर एक एरिया में, प्रोडक्शन में भी तुम एनवायरनमेंट को ध्यान रख रहे हो, पैकेजिंग में भी क्या तुम एनवायरनमेंट को ध्यान रख रहे हो, जब तुम स्टोरेज करते हो, जब तुम ट्रांसपोर्टेशन करते हो, सो दैट इज़ द आइडिया बिटवीन वी कैन से द ग्रीन मैट्रिक्स एंड मेथोडोलॉजी। तो ओवरऑल जो भी पूरा जो प्रोसेस है एक ऑर्गेनाइजेशन का, ओके, वहाँ पे हमें ग्रीन मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आई थिंक वी ऑल नो, ओके, इफ़ वी ट्राई टू रीच डाउन, ओके, कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होंगे। ओके, सो वी नो दैट we should try to make use more of, we can say water, or we can say solar, or we can say hydrogen, and so on. Okay, so we should try to make use of renewable resources more. We should basically, we can say, try to generate our energy from all these renewable resources। ये जितने भी renewable resources है उससे हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली एनर्जी जनरेशन करना चाहिए। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
नेक्स्ट इज इको लेबलिंग ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ इको लेबलिंग ऑफ आईटी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी हम परचेस कर रहे हैं, ओके, जो भी हम नया परचेस कर रहे हैं, नाउ आईटी प्रोडक्ट्स मतलब हम क्या क्या परचेस करेंगे। सो लेट्स से वी परचेस अ सर्वर, ओके, वी परचेस अ लैपटॉप, we purchase a desktop. Now there are very few electronic products existing जिसके ऊपर इको लेबल होगा। तो अगर हमें ट्रू सेंस में ग्रीन कंप्यूटिंग को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें इसके ऊपर क्या चाहिए, इको लेबल चाहिए ना। इको लेबल मतलब क्या, मतलब कि समझो मैंने एक सर्वर परचेस किया है एक्स वाई जेड कंपनी का, ओके, या एक लैपटॉप परचेस किया है। तो समझो मेरे पास एक्स वाई जेड का लैपटॉप है, एक्स वाई जेड कंपनी का लैपटॉप है, उसके ऊपर एक इको लेबल होगा। ये क्या बताएगा कि ये जो लैपटॉप है उसमें, ओके, पहले तो ये सबसे पहले क्या बताएगा कि ये जो लैपटॉप है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली लैपटॉप है। ओके, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली लैपटॉप है। नाउ एनवायरमेंटल फ्रेंडली लैपटॉप मतलब क्या, व्हाट डज बेसिकली इट मीन्स। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली लैपटॉप का मतलब ये हो जाता है स्टूडेंट्स, ओके, कि ओके, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली लैपटॉप के फीचर्स क्या क्या रहेंगे। ओके, इट विल बी एनर्जी एफिशिएंट, ओके, फर्स्ट थिंग इट विल बी एनर्जी एफिशिएंट। सेकंड, जब वो प्रोड्यूस किया गया होगा, ओके, मतलब उससे पहले लेस हार्मफुल केमिकल्स यूज, आई विल नॉट से नो, बट एज लेस पॉसिबल हार्मफुल केमिकल्स एंड मेटल्स, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, वी कैन से इजीली अपग्रेडेबल, मतलब ये लैपटॉप ऐसा नहीं होगा कि हाँ कुछ हो गया तो मतलब सीधा मतलब अपग्रेड नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या होगा, इजीली रिपेयरेबल, ओके, एंड मोस्टली, ओके, वी कैन से मोर देन 95% रिसाइक्लेबल। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ये सभी मतलब वी कैन से एट्रीब्यूट्स है तो उसको इको लेबल मिलता है, ओके। तो ग्रीन कंप्यूटिंग ये बताता है कि ट्राई करो, ओके, कि आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लो जिसमें ये सब फीचर्स हो, ओके। नेक्स्ट इज थिंक क्लाइंट, ओके। सो व्हाट इज बेसिकली थिंक क्लाइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन। जैसे कि वर्चुअलाइजेशन में हमें क्या बताया कि वर्चुअलाइजेशन ये चीज़ को टारगेट करता है कि आप बहुत ही बड़ा और अच्छा सर्वर लो और उसमें वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करो। लेकिन थिन क्लाइंट क्या बताता है, ओके, तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी सर्वर्स है, मतलब यू ऑलरेडी हैव सर्वर्स व्हिच इज हैविंग वी कैन से वेरी हाई कॉन्फ़िगरेशन, so now whatever new machines that you are purchased, you will purchase it as thin client. Now thin client का क्या फीचर्स होता है, ओके, सो वी से वेरी लेस पावर कंजम्पशन। क्यों वेरी लेस पावर कंजम्पशन होता है, क्योंकि उसके अंदर लेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, वेरी वेरी लेस कॉन्फ़िगरेशन। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होता है, राइट, ओके। थिन क्लाइंट का काम क्या होता है, ओके, सिंपल, जो थिन क्लाइंट का काम क्या है, कनेक्ट टू सर्वर। सर्वर को कनेक्ट करने के लिए उसको सिंपल क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए, ओके, कोई इंटरनेट चाहिए, ओके, कोई ब्राउज़र या कोई ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जो सर्वर से कनेक्ट हो सके, दैट्स इट। तो थीम क्लाइंट के पास खुद के लिए कुछ भी नहीं होगा, वो सीधा सिर्फ सर्वर को कनेक्ट करेगा ताकि तुम रिमोटली कहीं से भी सर्वर को एक्सेस कर लो। सो ग्रीन कंप्यूटिंग क्या ट्राई करेगा कि तुम सर्वर्स लो और बाकी जितने भी लेट्स से मशीन्स रहेंगे वो क्या होने चाहिए, थीम क्लाइंट होने चाहिए, ताकि बाकी सब मशीन्स का पावर कंजम्पशन कम से कम होगा। पावर कंजम्पशन कम होगा, वो लेस हीट जनरेट करेगा, अगर हीट लेस जनरेट करेगा तो कूलिंग कम करना पड़ेगा। देयर आर सो मेनी डिफरेंट एडवांटेजेस व्हिच यू विल गेट वाया थीम क्लाइंट, ओके। So yes, students, these are the pathways of we can say green computing. Okay. Again, if we quickly go through power management, efficient energy, and remediation of environmental pollutants, server virtualization, sewage treatment, waste management, recycling, regulation, water purification, green metrics and methodology, eco-labeling of IT products, thin client solutions. Okay, these all pathways actually define a green computing क्या है. Okay, okay. So we can look about the problems into our next session. Okay, I'll just tell you in brief what we discussed today. So we discussed about the e-waste recycling. Okay, the process होगा manual
डिसमेंटलिंग होगा, फिर बहुत सारी चीज़ें हमें जो है वो मिलेंगी, फिर श्रेडिंग होगा, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन होगा। देन वी स्टडीड अबाउट कि ग्रीन कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है, एंड देन वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट pathways of the green computing. Okay, okay, so we stop over here. Thank you, students.